This is based on ATT volume 2 and 3 ports, standard ports of ATT volume 2 and 3. So let's continue. Video. Given height of bridge 50 meters, height of mean high water spring tide 4 meters, charted depth 10 meters. Find the earliest time when a vessel with 12-meter draft can sail out of Bombay on 5th March 1992 to pass safely with a minimum 1 meter clearance under the bridge, and what will be her UKC. Maximum height of the vessel from keel to top of the mast is given as 62 meters. It's a question from one of your past MMD exams for second mates. Incidentally, the previous question was also from the past papers. This question, which looks little confusing, can become very simple if you can transfer this information onto an appropriate diagram. Now, since we are given the charted depth, so we can start with the seabed. Let this line represent the seabed. As the charted depth given is 10 meters, that means the chart datum is 10 meters above the seabed. So we go to 10 meters above the seabed, and what we get is the level of the chart datum. Why? Because the charted depth is measured from chart datum. Then we are given the height of mean high water spring tide, and we know all tide heights are given from chart datum. So that means if we go 4 meters above the chart datum, we shall have the level of the mean high water spring. Now, next we have is the height, charted height of the bridge, which is 50 meters. And in Tide video 1, we learned that all the charted heights and elevations are with respect to mean high water spring. So if we go 50 meters above the mean high water spring level, we shall get the bridge. So we go 50 meters above this, and what we get there is the bridge. Now, if we add all these three components, that shall give us the height of the bridge from the seabed. So seabed to bridge height becomes then 64 meters. Question wants the minimum mast clearance from the bridge, under bridge clearance of 1 meter. That means our mast cannot cross this line. So this is the highest point to which our mast top could be reaching when we are crossing the bridge. Now, mast to keel is given as 62 meters. Top of the mast to the keel is given as 62 meters. So if the top of the mast is in line with touching this line, then if we come 62 meters below this, we shall have the keel of the vessel, and the vessel is then like this, and we have the mast. So top of the mast to keel is 62 meters. So that means from bridge to the keel becomes 63 meters. Bridge to the seabed is 64 meters. Therefore, this whatever is left here is the under keel clearance, and that under keel clearance is obviously then only 1 meter. Okay, so beta, we had done up to here in the last lecture. So any doubts in your mind up to here, beta, in this diagram? Okay, great. So let's proceed ahead then. Let's see the calculation. So we now know what is the UKC. UKC was one of the items which was asked to us. So we know the UKC will be 1 meter at this particular instance. Let's move ahead. Now we also have the draft of the ship. So from the keel, if we go 12 meters up, we'll get the sea level because the draft is given as 12 meters. So this gives us the sea level. Once we have the sea level, the depth
of the seabed from the sea level becomes the depth of the sea at that point of time, which becomes 12 plus 1 as 13 meters. And what does the depth of the sea comprise of? It comprises of the charted depth and the height of the tide. So obviously this depth of the seabed shall be charted depth, which is 10 meters, and this height, which is the height of tide. So that means when the vessel crosses this bridge with the under bridge clearance of 1 meter, that time the height of tide required shall be 3 meters, and UKC then would be 1 meter. So once this entire information has been put into this diagram, now our question translates simply to find the earliest time on 5th March when the height of tide is 3 meters, and at that point of time the UKC shall be 1 meter. Okay, so is this clear, beta? The question is simplified now. We need to find the earliest time when the height of tide is 3 meters. That satisfies our criteria. Draft of the vessel, obviously in this case, is 50 meters, which is the distance from sea level to the top of the mast. So we are now required to find the earliest time on 5th March 92 when the height of tide is 3 meters. We go to the geographical index of ATT volume 2, which is alphabetically arranged. We locate Bombay in it. We find Bombay is in capital letters and also in bold, implying it's a standard port. Predictions are on page 153. We reach page 153 of ATT volume 2, and from there we pick up the tide predictions for 4th and 5th March. We've just picked up 4th March also because the question is about earliest time. Whether it is going to be useful or not, that we can subsequently take a call upon. Okay, so beta, you can check out this data in the tide tables and note it down. Let me know if you have any doubts anywhere in finding this data. अगर क्वेश्चन में आपको अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम पूछा जाता है तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको उससे पहले वाले डेट में या लास्ट वाले डेट में से एक टाइम को पिकअप करना पड़े. ओके, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस से हमारा जो 5th का पहला हाई वाटर है 0024 पे है अभी, अगर यही होता 0524 पे 0524, ओके, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमें 4th की लास्ट एंट्री को पिकअप करना पड़ता. So that is why both these dates are picked up. We will see whether it is required or not. Did you get it, beta? Yes, sir. Okay. So shall we move ahead now? Whether it is going to be useful or not, that we can subsequently take a call upon. Now we need the earliest time on 5th March 92 when the height of tide is 3 meters. These were the predictions for 4th and 5th March that we had picked. Now on inspecting this, we see that at 0024 hours, it's high water, which is more than 3 meters, and then it's a ebbing tide. So obviously during the ebb, when it becomes 3 meters, that is the earliest time when the vessel shall have a under bridge clearance of 1 meter. Why? Because if the tide is higher than 3 meters, then the under bridge clearance shall obviously be reduced. So therefore, we'll have to find out when the height of tide is 3 meters between 0024 when it is high tide and 0641 when it is low tide. So these are the two tide timings and heights which are of interest, and obviously what we picked up for 4th is not going to be used. So now we have the interpolation diagram. We have high water at 0024, height 4.3 meters, low water at
0641, height 1 meter. Duration of tide obviously is then 6 hours 17 minutes, and height range of tide is 3.3 meters. Now we go to this diagram on this side and we start plotting. On the low water scale, we mark the low water height. We are using the larger scale 0 to 4 and 0 to 7. So we mark off 1 meter of low water height. On the upper one, we mark the high water height 4.3. We join them and we get the interpolation line. Okay, so beta, you can note this down and you can mark the interpolation line in your diagram. Let me know once you are comfortable up to here. अगर इस क्वेश्चन में find the last time when a vessel with particular draft can sail out, तो आप क्या कौन सा टाइमिंग लेते थे? Okay, so you are saying कि क्वेश्चन में अगर लिखा होता find the last time on 5th when the vessel can sail out keeping 1 meter clearance from the bridge, right? Yes sir, ये earliest और last time में confusion हो रहा है काफी. बेटा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो कोई डाउट ही नहीं है. हमने ये देखा कि हमारी कंडीशन 3 मीटर पे सेटिस्फाई हो रही है, 3 मीटर पे. तो 5 तारीख को 3 मीटर की हाइट ऑफ टाइड सबसे पहले कब आएगी? कौन सी दो वैल्यू के बीच में आएगी बताओ? अर्लीस्ट में तो यही टाइमिंग है अभी जो हमने ले रखी है. राइट बेटा, यही टाइम के बीच आएगी ना अर्लीस्ट. अब अगर बोलो कि हमें लेटेस्ट टाइम चाहिए कि भाई 5 तारीख को लेटेस्ट कौन सा टाइम है जिसमें हमारा जहाज इस ब्रिज के नीचे से 1 मीटर की क्लियरेंस के साथ निकल जाए. ओके सर, इस क्वेश्चन में तो दिख रहा है जैसे ये 1242 के बाद और 1832 के बीच में लेंगे हम लोग. राइट. ठीक है सर, बाकी क्वेश्चंस किए थे सर, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें तो चलो ठीक है. ओके. अब बेटा जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा ना, वो क्वेश्चन में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देगा दैट इट विल मेक सेंस. ओके, ऑटोमेटिकली इट विल मेक सेंस. जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही होगी ना, आप वो मुझे बताओ बेटा. आइदर पुट इट ऑन द ग्रुप और टेल इट टू मी हियर इन द क्लास. हम उसको डिस्कस करेंगे. मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर. हाँ, ग्रुप में डालना बेटा. वी विल डिस्कस इट आफ्टर दिस, वी कैन डिस्कस. अब इसी सवाल में बेटा अगर आप बोलो, बता रहे हाँ गो अहेड बेटा. जिसमें कि हम 4 को यूज करेंगे. आस्क अगेन, व्हाट्स योर डाउट? सर आपने जैसे 4 और 5 बोला था कि लेके आना है हमें, तो वो केस बता रहे थे जिसमें कि हम 4 को यूज करेंगे. सेम सिचुएशन में अगर अर्लीस्ट टाइम पूछा होता तो 4 को कब यूज करता मैं? ओके बेटा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके बेटा, मैं यहाँ पे ना हाइपोथेटिकल टाइम लिख रहा हूँ जस्ट टू टेल यू कि किस केस में हमें 4th का टाइम जो है वो यूज करना पड़ सकता है. लेट अस से 4th को 23:30 पे हाई वाटर हुआ. ओके, सो 23:30 पे देयर वाज ए हाई वाटर इन मुंबई एंड दैट हाई वाटर वाज लेट अस से 4 meters. एंड 5th को 0500 पे लो टाइड हुआ. लो टाइड की वैल्यू कितनी थी? 1 मीटर. ठीक है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू मानी है बेटा हमने, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें 4 तारीख में भी जाना पड़ सकता है. ओके
ओके सर। सर इस केस में तो अगर 3 मीटर जो होगा वो 5 तारीख को होगा अर्लीस्ट टाइम पे, इस जो आप बता रहे हो अभी। इस केस में 5 बजे से पहले 3.0 मीटर का टाइड आ जाएगा, राइट? यस 5 सर। तारीख को और 5 बजे से पहले 3 मीटर का टाइड आ जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि वो 3 मीटर का टाइड कितने बजे आ रहा है, यही तो चाहिए हमें सवाल में। अब अगर हमें ये पता करना है कि ये किस टाइम पे आ रहा है, तो कौन सी दो वैल्यू के बीच में इंटरपोलेट करना पड़ेगा बेटा? सर 4 और 5 के बीच में। वेरी गुड, 4th की लास्ट वैल्यू और 5th की फर्स्ट वैल्यू। सो ये एक सिचुएशन है जिसमें आप देख सकते हो कि हमें पिछली डेट की वैल्यू को भी यूज करना पड़ सकता है। फॉर्चुनेटली जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी केस में पड़ भी सकती है, इसीलिए यहाँ पे हमने दो डेट्स की वैल्यू को पिक कर लिया था। अगर ज़रूरत पड़ती तो हम यूज़ कर लेते। ओके इसे सर। और सर इसे हाँ, बोलो बेटा और आप बोलो। कह रहे हैं जो अर्लीस्ट टाइम अगर हमें पूछा होता है तो हम हमेशा राइजिंग टाइड कंसीडर करते हैं। अब वो यूकेसी के केस में है बेटा। अगर आपसे यूकेसी के साथ अगर वो बोलता है जी 1 मीटर की यूकेसी चाहिए, फाइंड द अर्लीस्ट टाइम टू सेल आउट, ओके, ओके 1 मीटर की यूकेसी चाहिए, फाइंड द अर्लीस्ट टाइम टू सेल आउट, उस केस में राइजिंग टाइड को यूज किया जाता है। अगर आपको उसने ब्रिज क्लियरेंस पूछा हो, ब्रिज क्लियरेंस, कि भाई इतनी क्लियरेंस हमें चाहिए, फाइंड द अर्लीस्ट टाइम टू सेल आउट, उसमें फॉलिंग टाइड को पूछा जाता है। अर्लीस्ट टाइम अगर पूछा होता है तो आस्क अगेन बेटा। अगर वो कहता है कि फाइंड द अर्लीस्ट टाइम टू पास द वेसल, अगर ब्रिज क्लियरेंस का केस होगा तो मैं फॉलिंग टाइड को कंसीडर करूंगा। That is right beta, that is right. Okay, let me go back a little bit. हमने इस डायग्राम में देखा कि अगर हमारी 3 मीटर की हाइट ऑफ टाइड है तो 1 मीटर की क्लियरेंस हमें मिल रही है, ओके। अब यस सर। लेट अस से ये 3 मीटर की हाइट जो है ये आ रही है, मान लेते हैं सुबह 4 बजे आ रही है, 0400, करेक्ट। और यस ये फॉलिंग टाइड है, फॉलिंग टाइड, ओके। सो 3:50 पे जो हाइट ऑफ टाइड है वो 3 मीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि फॉलिंग टाइड है ये, राइट। यस सर। 3:50 पे हो सकता है ये हाइट ऑफ टाइड हो 3.1 मीटर, तो हमारी ब्रिज क्लियरेंस अभी बनी नहीं, ब्रिज क्लियरेंस कम है। एग्जैक्टली 4 बजे हाइट ऑफ टाइड हो गई 3 मीटर, हमारी ब्रिज क्लियरेंस बन गई 1 मीटर की। अब ये अर्लीस्ट टाइम है जब हम निकल सकते हैं, ओके। अब अगर आप फ्लड टाइड का केस ले लो, मान लो फ्लड टाइड हो रहा है, फ्लड टाइड में कभी भी अर्लीस्ट टाइम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अभी देखते हैं। लेट अस से हम किसी पोर्ट, इस पर्टिकुलर पोर्ट में हैं और फ्लड टाइड है, सुबह के 4 बजे का टाइम है, टाइड की हाइट जो है वो 3 मीटर है, तो 3 मीटर का मतलब है हम निकल सकते हैं। अगर आधे घंटे पहले की वैल्यू देखें, 3:30 की वैल्यू देखें, तो फ्लड टाइड का मतलब है कि आधे घंटे पहले की वैल्यू इससे कम होगी, 2.5 मीटर की वैल्यू होगी टाइड की, 2.5 मीटर। अब अगर टाइड 2.5 मीटर है तो क्लियरेंस तो बेटा फिर भी बनी रही है ना, क्लियरेंस तो 1.5 मीटर हो गई है, सो हम अभी भी निकल सकते हैं। ओके सर। इस केस में हम बस ब्रिज क्लियरेंस देख रहे हैं कि 1 मीटर कब होगा। राइट, जब भी कभी ब्रिज क्लियरेंस की बात आएगी, अर्लीस्ट टाइम पूछा जाएगा, तो फॉलिंग टाइड में ही मिलेगा। ओके सर। सर क्वेश्चन ओके, में एक्चुअली दोनों चीज दी है ना कि 1 मीटर क्लियरेंस और 1 मीटर यूकेसी। नहीं बेटा, 1 मीटर यूकेसी चाहिए नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि यूकेसी कितनी होगी। देखो, टू पास सेफली विद मिनिमम 1 मीटर क्लियरेंस अंडर द ब्रिज, ये कंडीशन मीट करनी है। एंड व्हाट विल बी हर यूकेसी, उन्होंने बोला नहीं है कुछ कि हमें इतनी यूकेसी मेंटेन करनी है, उन्होंने सिर्फ पूछा है कि इस टाइम पे यूकेसी कितनी होगी। ओके सर, क्लियर है सर अब। हाँ, अगर वो हमसे ये बोलते कि भाई 1 मीटर की यूकेसी मेंटेन करनी है, ओके, सो फिर उस केस में क्वेश्चन बदल जाता बेटा। ये सर फिर हम उसमें राइजिंग टाइड रहते हैं ना सर।
राइट, फिर उसमें राइजिंग टाइड हो जाता, क्योंकि फॉलिंग टाइड में आपने अगर 1 मीटर की यूकेसी को लिया तो फिर उस टाइम के बाद तो आप जा ही नहीं पाओगे ना, आपकी यूकेसी कम हो जाएगी। तो वो लेटेस्ट टाइम मिलेगा फॉलिंग टाइड में यूकेसी के कंपैरिजन में। ओके सर। ओके ओके, सो बेटा यहाँ तक इंटरपोलेशन लाइन तक एवरीथिंग, एवरीबॉडी कंफर्टेबल? सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बेटा। जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स में मुंबई और बॉम्बे दो अलग अलग चीज है। क्वेश्चन में मुंबई दिया हुआ है हमें और ज्योग्राफिकल इंडेक्स में बॉम्बे है। ऐसी कोई सिचुएशन भी आ जाएगी सर एग्जाम में? आनी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि जो मुंबई नाम चेंज हुआ था बॉम्बे टू मुंबई, दैट हैपेंड आफ्टर 1992। तो आपके केस में यहाँ पे बॉम्बे ही होगा, मुंबई नहीं होगा। ओके सर, बट किसी और दूसरे पोर्ट पे, कोई यूरोप का पोर्ट है या फिर कोई भी दूसरा पोर्ट जिसमें ऐसे हो गया हो, तो हम कैसे ढूंढेंगे? कंफ्यूजिंग होगा ना सर ये तो बहुत। बेटा आपको तो जो नाम क्वेश्चन में दिया गया है उसी नाम से जाके पोर्ट को ढूंढना है, और आपको वो पोर्ट ज्योग्राफिकल इंडेक्स में मिल जाएगी, आपने उसे वहां से पिक कर लेना है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ आएगा बेटा, बताओ मुझे। सर जैसे कि एक क्वेश्चन जो हमने शायद सबसे पहला किया था, उसमें क्वेश्चन में मुंबई दिया हुआ था और मैं मुंबई ढूंढ रहा था। मैंने तीनों वॉल्यूम में ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने बॉम्बे कौन सर्च। बेटा, कौन सा क्वेश्चन जो हमने किया था क्लास में? यस सर। मैं पीछे ले जाता हूँ बेटा। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद वी विल लुक एट मुंबई। वी विल सी दैट क्वेश्चन, ओके? ओके सर। अदरवाइज वी विल लूज ट्रैक। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने अभी इंटरपोलेशन लाइन बना ली है। बेटा इफ एवरीबडी इज ओके, शैल वी मूव अहेड नाउ? इंटरपोलेशन लाइन से आगे चलें? यस सर। ओके ठीक है बेटा। We get the interpolation line. Now we need the time when the height of tide shall be 3 meters. So 3 meters is the required height of tide. From 3 meters we come vertically downwards till we hit the interpolation line. Once we have hit the interpolation line, we go to the right horizontally and we decide whether to stop on the left or the right. Now on inspecting our tides, we find that it's a ebbing tide. That means our event or occurrence shall be after high water. If it's after high water, that means we go to the right side curve. So we go horizontally from here, and up to what level? We go for a duration of 6 hours 17 minutes by visual interpolation. So it will be between 6 and 7, 6 hours 17 minutes. And from there, we come vertically down till we hit the baseline here. And on the baseline, we read off the interval. And this interval is 2 hours 48 minutes after high water. Okay. So beta, have a good look at this working and let me know any doubt coming up to 2 hours 48 minutes. सर 2 hours 50 minutes है। Perfectly fine beta, 2 hours 50 is okay. ओके सर। ओके सर इसमें अभी कर रहा है एबिंग हो रही है, तो एक वो समझाना सर। बेटा अपना डाउट बताओ मुझे, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? आप ये पूछना चाहते हो कि हम यहाँ पे क्यों नहीं रुके, हम राइट साइड में आके क्यों रुके हैं ग्राफ में? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, टाइम बाद का है इसलिए आ गया ना वो आगे। मैं बेटा बताता हूँ अभी आपको। देखो बेटा, ये जो पहला वाला ग्राफ आप देख रहे हो ना, पहला वाला जो लेफ्ट साइड पार्ट है हमारे ग्राफ का,
इसको बोलते हैं फ्लड टाइड। फ्लड टाइड मीन्स पानी का लेवल बढ़ रहा है। और जो राइट साइड वाला पार्ट है हमारे ग्राफ का, इसको हम बोलते हैं एब टाइड। एब टाइड का मतलब है कि पानी कम हो रहा है। तो हमें अपने फिगर्स में देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप हमारी वैल्यूज़ में जाओ तो आप देखो 0024 पे हमारा हाई वाटर था और 0641 पे हमारा लो वाटर था। तो ये कौन सा टाइड है बेटा? राइजिंग टाइड है या फॉलिंग टाइड है? सर फॉल हो रहा है। फॉल हो रहा है। जब भी कभी टाइड फॉल होगा तो इस ग्राफ के राइट साइड वाले कर्व को ही यूज करेंगे। राइट साइड वाला कर्व फॉलिंग कर्व है और लेफ्ट साइड वाला कर्व राइजिंग कर्व है। और सर तीनों में से ड्यूरेशन वाली लाइन कौन सी लेंगे? ओके, सो वेरी गुड बेटा। अब देखो, हमने 3 मीटर से शुरू किया, हम नीचे आ गए इंटरपोलेशन लाइन पे, फिर इंटरपोलेशन लाइन से हम हॉरिजॉन्टली चलते गए। अब जब हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमें 3 लाइनें मिलेंगी, 1 2 3। आर यू एबल टू सी द कर्सर बेटा? यस सर। सो अब बेटा इसमें जो सबसे पहली लाइन हमें मिल रही है वो है 5 आवर्स की लाइन। देखो नीचे 5 आवर्स लिखा हुआ है। जो दूसरी लाइन मिल रही है वो है 6 आवर्स की लाइन, और जो तीसरी लाइन मिल रही है वो है 7 आवर्स की लाइन। अगर हमारी ड्यूरेशन 5 घंटे की होती तो हम पहली लाइन पे रुक जाते। अगर हमारी ड्यूरेशन 6 घंटे की होती तो हम सेकंड लाइन पे रुक जाते। और अगर 7 घंटे की होती तो हम तीसरी लाइन पे जाके रुकते। हमारी ड्यूरेशन यहाँ पे कितनी है बेटा? 17 minutes। वेरी गुड, 6 आवर 17 मिनट। तो जो मिडल वाली लाइन है वो 6 घंटे की है, जो राइट साइड वाली लाइन है वो 7 घंटे की है। हमें 6:17 पे रुकना है जाके। अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 1/4 ऑफ द और 1/4 और 1/3 ऑफ द टोटल गैप। ओके, तो आप देखो हमने यहाँ विजुअली अंदाजे से यहाँ पे 1/3 या 1/4 गैप लिया और इस पॉइंट से फिर हम लोग वर्टिकली नीचे आए। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ठीक है सर। ओके, सिंस दिस इज ए अप्रोक्सीमेशन, ये पॉइंट थोड़ा बहुत आगे या पीछे भी जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि टाइम में प्लस माइनस 5 मिनट तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। प्लस माइनस 5 मिनट्स इज ओके। जब पेपर चेक होते हैं बेटा तो ये चीज़ एग्जामिनर को पता होती है, पेपर चेकर को पता होती है दैट दिस मच एक्यूरेसी इज अलाउड इन द वर्किंग। ओके बेटा, क्लियर? Very good. Let's move ahead then. We have the interval now. Interval after high water is 2 hours 48 minutes. So the height of tide shall be 3 meters at an interval of 2 hours 48 minutes after high water. And what is the time of high water? 0024. Therefore, the time of required tide shall be 0312 hours. That means 2 hours 48 minutes after 0024, and that time is 0312 hours. Okay, so this brings us to our answer beta. 0312 is our answer. This is the earliest time on 5th March when the vessel can sail out, keeping this much of bridge clearance. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये जहाज 3:12 से पहले उस ब्रिज को क्रॉस करता है तो क्या होगा? लेट अस से 3 बजे अगर ये क्रॉस करेगा तो क्लियरेंस का क्या होगा बेटा? कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगा? ज्यादा होगी सर, पहले ज्यादा होगी सर। ओके, सो 3 बजे अगर हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो क्लियरेंस ज्यादा होगी ब्रिज से? नो सर, ब्रिज से कम होगी और यूके से ज्यादा होगी। वेरी गुड, ये दूसरा ऑप्शन आ गया बेटा, कम होगी। सो कौन बनेगा नेविगेटर? ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं,
3 बजे क्लियरेंस कम होगी 1 मीटर से या 3 बजे क्लियरेंस ज्यादा होगी 1 मीटर से? कम होगी सर। ओके, कम होगी। और बोलो बेटा। क्लियरेंस कम हो जाएगी सर। क्लियरेंस कम हो जाएगी। वेरी गुड। सो पब्लिक ओपिनियन कम की तरफ जा रहा है। ओके, दैट्स राइट बेटा, क्लियरेंस कम हो जाएगी। अगर आप 3 बजे जाते हो, देखो 3 बजे हाइट ऑफ टाइड जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज इट्स ए फॉलिंग टाइड। ओके, फॉलिंग टाइड, पानी का हाइट जो है वो कम हो रहा है। सो अगर आप 3 बजे ब्रिज को क्रॉस करते हो तो आपकी हाइट ऑफ टाइड 3 मीटर से ज़्यादा होगी। अगर हाइट ऑफ टाइड 3 मीटर से ज़्यादा होगी तो शिप और ऊपर चला जाएगा ना। शिप ऊपर जाएगा तो आपकी ब्रिज से क्लियरेंस कम हो जाएगी। सो अगर आप 3:12 से पहले उस ब्रिज के अंडर से क्रॉस करोगे तो आपकी क्लियरेंस कम हो जाएगी। आप 3:12 से पहले वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप 3:12 के बाद क्रॉस करोगे, लेट अस से आप 3:30 पे क्रॉस करते हो, तो क्लियरेंस का क्या होगा? ज्यादा हो जाएगी क्लियरेंस ब्रिज से। वेरी गुड बेटा। सो इफ यू क्रॉस इट एट 3:30, सिंस इट्स ए फॉलिंग टाइड, वेसल विल कम डाउन, हाइट ऑफ टाइड विल रिड्यूस, आपकी जो ब्रिज की क्लियरेंस है वो बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। एंड इफ यू थिंक केयरफुली, यूकेसी के साथ बिल्कुल उल्टा होगा। यूकेसी अगर आप देखो तो यूकेसी 3:12 से पहले अगर क्रॉस करोगे तो 3:12 से पहले यूकेसी ज़्यादा होगी, और 3:12 के बाद अगर क्रॉस करोगे तो यूकेसी कम हो जाएगी। अब समझ आ रहा है बेटा? इज इट मेकिंग सेंस? लगता है सब ऊपर से निकल गया बेटा। समझ में आ रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो बेटा ये जो डायग्राम है ना, लेट मी शो यू, ये वाली जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अपने हाथ से अपनी नोटबुक में बनाना। इस डायग्राम को अपने हाथ से अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाना, और फिर इस पे मेडिटेट करना सुबह उठ के 10 मिनट 15 मिनट इस डायग्राम को देखते रहना। तो आपको पता चल जाएगा कि जहाज़ ऊपर नीचे कैसे डांस करेगा टाइड के बढ़ने पे और कम होने पे, यूकेसी कैसे बढ़ेगी और कम होगी, ब्रिज क्लियरेंस कैसे बढ़ेगी और कम होगी। ओके, यस सर। okay, very good beta. So with this beta, we basically cover up the standard ports of ATT 2 and 3. हमारी सारी स्टैंडर्ड पोर्ट्स कवर अप हो चुकी हैं, इनके टाइड की कैलकुलेशन हम देख चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है, ये थोड़ा सा पावरफुल टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। टाइड में सबसे मुश्किल सवाल जो है वो अभी आगे आने वाला है हमारा, दैट इज सेकेंडरी पोर्ट ऑफ ATT 1, एडमिरल्टी टाइड टेबल्स 1 की सेकेंडरी पोर्ट की टाइड कैलकुलेशन सबसे मुश्किल। ओके, इसमें हम यूज करेंगे लॉट ऑफ इंटरपोलेशन। स्टेबिलिटी में इंटरपोलेशन कर रहे हो बेटा हिंजिप के साथ? यस नहीं सर। वेरी गुड। थोड़ा बहुत। तो जैसे पार्टिकुलर्स निकालते हो ना, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के साथ पार्टिकुलर्स निकालते हो, बिल्कुल वैसी ही इंटरपोलेशन यहाँ भी करेंगे। अब वो आएगी अगले टॉपिक में, विच इज सेकेंडरी पोर्ट ऑफ ATT 1। ओके, सो कमर कस के बैठना अगली क्लास में। ये मुश्किल टॉपिक होने वाला है।